Hi everyone, my name is नरेंद्र राज. I am a final year undergraduate student from IIT गुवाहाटी. तो इस वीडियो का मोटिव ये है कि आप जो मेहनत करते हो ऐसे 2 साल जेई के लिए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, नीट हो गया, क्लैट हो गया, डजेंट मैटर, हाउ वर्थ इट इज़ लाइक आफ्टर दैट. सो आई हैव लाइक 4 अमेजिंग पीपल अलॉन्ग विथ मी कमिंग ऑन दिस वीडियो, जो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे क्या एक्सपोजर मिलता है. आप अगर एक छोटे टाउन से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आईआईटी क्यों जाना चाहिए, वाई यू शुड पुट दिस मच ऑफ हार्ड वर्क टू क्रैक आईआईटी और जेई और नीट, एनी कॉलेजेस एज सच. तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल मोटिवेट यू, इंस्पायर यू टू डू समथिंग बेटर एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. सो या, लेट्स ब्रिंग देम ऑन बोर्ड. So hi everyone, please welcome these 4 amazing people along with me, and I would like you to introduce yourself. First, I would like Parth, please introduce yourself. So I am Parth. जैसे तो तुम सबको पता ही होगा, those of you who have been following the Range channel for a while. I just graduated from IIT. I'm a fourth year who has done his EC from IIT Guwahati, and I'll be starting work in a month or two. Excited for it. Right, Yogesh. So, hello, I'm Yogesh, and I'm also a student at IIT Guwahati EC, and uh, I'm also going to work at Walmart very soon. Right, Amrina. Hi, so I'm Renal. I'm also in a EC branch. I've been placed in Larsen and Toubro Infotech. I'll be working in a month or two. Very excited. I'll be posted in Mumbai. So Right. Mumbai वाले लोग मिलते हैं इधर. Nice. And finally, Bela. हाय सो आई कांट से कि हम लोग पहले मिले क्योंकि मैं अच्छे से नरेन के ब्लॉग्स में अब तक आया नहीं हूँ. बट आई एम अथर्व बेलापुरकर. सो आई एम ऑल्सो नॉट अ स्टूडेंट नाउ. आई कैन से आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT गुवाहाटी, and I am going masters in France. I'll be joining around September, so let's see how the co-ed scenario goes, but hopefully I'll join in September in a masters in aerospace engineering in France. Right. So guys, you can see from this very brief intro only how amazing life is gonna be just after graduating from IIT Guwahati. So in this video, we're gonna talk about all the struggles we are doing. So we'll share our experience, our whatever the time we spent during JEE preparation. We'll share some memories from that, and we would like to bring a message that it's all worth it. Like after all of the hard work you are doing right now, it's gonna be worth it. And I have these guests, like they're my friends only, to share their experiences with you. And I hope this video will ultimately motivate you to, work hard and reach the level you want to do in life. Starting with Yogesh, tell me something about your JEE journey, and is it how So- it's worth it right now? Yeah. Obviously, it is worth it, but you have to motivate yourself throughout the journey. There are so many obstacles you will face. Like somehow you might be convinced like this is not going to be worth it. You're not going to make it to that place. So I think keep yourself motivated. बहुत सारी चीजें होंगी लाइफ में. तो in my journey I have started, मतलब I was from a very small मतलब school, and people were going to Kota, सब कोटा जा रहे थे, and I was so confused कि what should I do. मतलब I have a faith in myself. मुझे पता था कि I'm good at science, लेकिन still when you're seeing a lot of people doing something and then you start doubting yourself कि what you are doing. मैं कोटा नहीं गया था, मतलब मैं नहीं गया था. I was not preparing. It's a big coaching. तो I was also doubting myself, लेकिन I have my faith. मुझे पता था कि मैं कहाँ पे हूँ. I have evaluated myself. Also ना धीमे धीमे फिर मैंने 11th में मैं थोड़ा सा पीछे भी हो गया. In somehow I थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ जर्नी से 11th में, लेकिन फिर 12th में आया. 12th में I have joined some coachings, some local coachings. उसके बाद मैं I started preparing, and I was also diverted on very much stuff. लेकिन मुझे काफी चीजें चल रही थी लाइफ में उसके बाद, लेकिन स्टिल मैंने बोर्ड्स पे फोकस किया. और मैं मतलब मैथ्स में इतना अच्छा नहीं था, और मैथ्स पे फिर मैंने मोटिवेशन की कमी थी. उसके बाद मैथ्स में इतनी नहीं अच्छी हो पाई. फिजिक्स ही मैं पढ़ता रहता था.
व्हाट हैपेंस इज कि जैसे मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि लोग जैसे मैंने भी वही किया, मैं 12th में आई एम नॉट इवैल्यूएटिंग माई सेल्फ कि व्हाट शुड आई डू, और मतलब आई वाज गुड एट फिजिक्स तो आई वाज जस्ट डूइंग फिजिक्स, आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन मैथ्स। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जो वो लोग भूल जाते हैं उनका पाथ क्या है, और जो उन्हें सही लगने लगता है वो वही करते रहते हैं। ये होता है सभी के साथ होता है, लेकिन यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि व्हाट इज योर प्राइमरी गोल एंड यू हैव टू फोकस अगेन। सो वही मेरा फिर रिजल्ट आया एडवांस का, जिसपे केवल फिजिक्स में ही मार्क्स थे और किसी में मार्क्स ही नहीं थे। तो आई न्यू कि आई कैन डू इट, तो मैंने दोबारा से प्रिपेयर किया। इस बार मैंने सब प्लान किया, इस बार मुझे पता था कि मुझे कैसे कहाँ पे स्कोर करना है। मैंने कानपुर में था, मैं कानपुर में मैंने तीनों कोचिंग अच्छे से ज्वाइन करी। इस बार प्रॉपरली सब कुछ स्टार्ट किया, प्लान किया कि कब कौन से मंथ में करना है। मुझे अभी बहुत रिसेंटली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि टिप्स दो भैया कि व्हाट वाज द प्राइमरी थिंग यू followed through your journey and through your preparation. So I would say कि planning is a very crucial thing. When you plan things, at least if you're not मतलब able to follow अपना, तो तुम्हें पता होता है कि you are lacking something. अगर तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है तो तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि तुम पीछे हो या आगे हो, कुछ भी नहीं पता चलेगा। मतलब आई वाज आल्सो वेरी वीक इन फॉलोइंग प्लान्स, लेकिन मेरे पास मैं हमेशा प्लान करता था और हमेशा फेल भी होता था वो प्लान्स को फॉलो, लेकिन मुझे पता चलता था कि समहाउ मैं कहीं ना कहीं पीछे हूँ। तो मैं उसके लिए फिर और एफर्ट मारता था, लेकिन फिर उसके एक नया प्लान बनाता था कम टाइम के लिए। तो प्लानिंग वाज अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर मी, एंड थोड़े बहुत डिसिप्लिन भी जरूरी है। मतलब डिसिप्लिन इज अ वेरी हार्ड थिंग to maintain for a very long time, लेकिन still it is a very useful thing. It keeps you in a single direction. So discipline is one of them. Second thing I want to tell you about it. So उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन, मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट दो एकदम टाइम के साथ में और इवैल्यूएट करो। तो लास्ट में मैंने देखा कि लास्ट में यू हैव टू सेलेक्ट कि व्हाट आर द मेजर थिंग्स you should go on with, और what are the things you have to reject। मतलब तुम मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि you don't have to score 360 out of 360, तो you can easily figure out things की जो तुम्हें नहीं पढ़नी, और easily figure out things जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो this is the third thing, self evaluation. So yeah, that's pretty much it. उसके बाद मैंने मेंस दिया, मेंस में मेरे काफी अच्छे नंबर आए थे। मैंने एनसीईआरटी था वेरी गुड थे। मतलब बहुत सारे लोग मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं कि बुक्स क्या थी, तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी ही पढ़ो। बहुत सारे लोग बुक्स के पीछे बढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं, उसके बाद सबसे थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा कभी मत करो। whatever you're doing, do it 100%, otherwise it's nothing, right? तो एनसीईआरटी पे फोकस करो अगर मैं बुक्स के लिए था। बुक्स उसके बाद फिर इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम किस मतलब टाइप की प्रिपरेशन करना चाहते हो, किस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तुम्हारे सब्जेक्ट में तुम्हारी कॉन्सेप्ट ग्रास्प कितनी है, तो वो तुम पे डिपेंड करता है। बुक्स एनसीईआरटी इज अ मस्ट फॉर बुक्स। एंड या उसके बाद फिर मेंस के बाद मैंने एडवांस के लिए प्रिपेयर किया। एडवांस के लिए देयर आर सम स्पेसिफिक बुक्स व्हिच यू कैन सर्च ऑनलाइन आल्सो। आई वुड आल्सो गिव अ लिस्ट इफ यू रियली वांट टू हैव दैट लिस्ट। तो एडवांस के लिए देयर आर फ्यू बुक्स अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। मेंस के लिए एनसीईआरटी इज अ मस्ट, एनसीईआरटी पढ़ लो। केमिस्ट्रीज के लिए तो मेंस आराम से हो जाता है। उसके बाद फिर एडवांस दिया मैंने, एडवांस में मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए। with these people। यस, तो जैसा आपने देखा कि योगेश अपना जर्नी बताया, तो समवट सब लोग की लाइफ ऐसी रोलर कोस्टर पे चलते रहती है। सबका मतलब थोड़ा अलग प्रॉब्लम होता है, कोई अलग अचीवमेंट होता है, किसी का अलग सब्जेक्ट अच्छा होता है, बट ऑलमोस्ट सेम होता है। वी ऑल आर प्रिपेयरिंग और सबका प्रोसेस अलग होता है, मेथड अलग होता है, बट अल्टीमेटली डायरेक्शन वी आर हेडिंग इज सेम एंड द गोल वी आर ट्राइंग टू अचीव इज सेम। सो अभी मैं पार्थ से चाहूंगा कि कुछ लाइट दो कि व्हाट हैपेंड आफ्टर कमिंग टू आईआईटी। डिड यू एंजॉय इट ओवर हियर? लाइक वाज इट वर्थ इट? मतलब ऑल अराउंड कमिंग टू, अब हम सबकी स्टोरी सुनेंगे कि ऐसे ऐसे पढ़ रहे तो इट्स द सेम थिंग। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट व्हेन यू केम टू पल। So let me tell you about life minded. So why do you think लोग क्यों कहते हैं कि आईआईटी इतना बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है? What makes it so amazing? तुम कॉलेज से क्या ले जाओगे that will help you in life? ये this is the first question that comes to mind. तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो? लोग कहते हैं कि तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, बट
मैं काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैंने जितना मतलब हाई स्कूल में सीखा ना 11th-12th में, जितना ज्यादा मैंने फिजिक्स में सीखा, मैथ में सीखा, जो भी सीखा, दैट इज वे मोर देन आई हैव लर्नड इन माय 4 years of college. मैं तो ये कह सकता हूँ एकेडमिकली, ठीक है. And that changes from person to person. It might be different for other people, but for me this was personally. I think the best thing a college can give you is the chance to figure out who you are. तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी strengths क्या है, weaknesses क्या है. So things I've learned, that I'm a team player, I can network well, I can lead well. These are things I've learned. कि these are my strengths. अगर तुम्हारी strength है academia, if your strength is to study and to write and to research or whatever, so for that is also something you'll figure out in college. And I think the best thing about IIT is that it gives you so many resources. पहले तो तुम्हें जो चाहे करना है ना, कर सकते हो IIT आके, जो चाहे. The world is your oyster. ठीक है, पहले तो that. Secondly, IIT, I read this one post recently, which is like which spoke about this dinner amongst a few friends from IIT Kanpur. ठीक है, and they realize that जो भी at the end of the day, even their jobs, right, उन्हें अच्छे से they had to work hard, they had to work really hard to get to like the amazing positions they were. But one thing IIT gave them is a safety net. The name of the institute itself, right, is a safety net. कि तुम जो भी कर लोगे ना लाइफ में, तुम you will be this amount of set at the very least. This is like your safety is there. इससे आगे जाके there is nothing that you can't do. So when you come to IIT and you're in this beautiful big institute, right, it motivates you. It's like अब मेरा safety net है, it motivates you to work hard, it motivates you to be more of yourself. Just for example, my experience in IIT, it motivated me to learn a lot of new things. It motivated me to work towards a lot of things I wanted to work towards. It helped me find myself. And third, and possibly मेरे opinion में, the best thing about IIT is the people. You find all sorts of connections. Some of them become very close friends, like the people on this call. Some of them aren't that close friends, but they're still great people to know. Exactly. But they're still great people to know, and it gives you just this beautiful, beautiful network of very like-minded, very capable, very smart thinkers, very good thinkers, very intuitive thinkers, people who think like you, people who work like you and function like you. And it's just amazing the amount of things that an IIT gives you that मेरे ख्याल से no other college can provide in the same capacity IIT can. You become more you. You become the most you can be, and it sets you up for success in a way that no other college in India can. Definitely. Definitely. अब मैं बहुत छोटे टाउन से हूँ, यहाँ पे एक्सपोजर है नहीं, एंड आई थिंक मृणाल कैन आल्सो रिलेट टू इट. ही इज फ्रॉम घाटशिला, मैं झाझा से हूँ. तो हमें वो जो बड़ी दुनिया है, जो बड़ा प्लेग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, हमें वो दिखा नहीं अपने टाइम में. सो आई वुड लाइक टू गेट सम इनसाइट फ्रॉम मृणाल कि वो एक्सपोजर कैसा लगा. लाइक हम जो भी लोग जो देख रहे हैं, जो बहुत स्मॉल विलेजेस या टाउन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैसेज कि हाउ अमेजिंग like it feels when you reach there, when you see that campus. वो बता. Like it's like a movie. मतलब तो मूवी में ही देखते हो कि people play ऐसे, लोग जा रहे हैं शाम को टेनिस खेल रहे हैं. This all are in a movie. रियल लाइफ में होती नहीं है. हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में कोई दिखता नहीं है ऐसे कोई टेनिस खेलता हुआ, पूल खेलता हुआ. These are all things which are available, है ना, which are not available in common day life. तो ये लाइफस्टाइल का चेंज बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस था. a lot, you'll get to learn a lot. चीज़ों को बहुत अच्छे से देखोगे, माइंड पूरा खुल जाता है वहाँ जाके. there are so many different types of people, different types of thoughts they have. कितने अलग अलग चीज़ें, मतलब पार्थ से मिलके कितनी अलग अलग चीज़ें मैंने जानी है, ये भी एग्जिस्ट करता है. वाओ. एग्जैक्टली. तो वो एक बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है when you are exposed to such quality people, quality place, quality space, and एकदम मस्त. Coming to Bela, how is it feeling, man? Going to France very soon. यहाँ से. It can't get better, man. अरे मतलब I still remember. So talking about IITs, मैं जब एक बार सैन फ्रांसिस्को में था, I remember, and I was in Stanford University. ऐसे ही मतलब मैं पापा हम सब घूम रहे थे वहाँ पे. So there
I was like talking to my dad कि this is also a good college and we also have good colleges in our institute like IITs. So then what about the people who come here for bachelors and not? So एक उनमें से अमेरिकन आदमी हमारी बातें सुन रहा था और उसने मुझे बोला आके कि if you come here if you don't get IITs. तो मतलब IIT का recognition कहाँ है इसका आइडिया मुझे तब लगा यार. मैं बोला सही है यार, IIT इतना ज़्यादा recognize. So that was in the back of my mind, मुझे motivate किया IIT आने का. And yes, you know कि IIT में क्या क्या होता है ये तो इन लोगों ने बोला, but then I'd like to focus on IIT का name tag किस चीज़ में important है. Okay, so once you are IITian you have that feel कि यार मतलब कुछ तो एक अलग सा feel आता है, like Parth said कि यार we get into that mindset. We can now start, now it's a different beginning, like driving license आ गया है, अब अपन गाड़ी मस्त चला सकते हैं. So in that way once you like मैं मेरे को जब IIT में नंबर लगा था, so that time it was like wow, it was like winning a world cup basically. So then अब इसके वजह से आई हैव रियलाइज कि मास्टर्स ऑफ साइंस या कहीं भी अप्लाई करोगे अब्रॉड तो लोग IIT के बारे में जानते हैं. ओके, लोग पहचानते हैं और तुम्हारे CV में IIT ये अलग से दिख के आता है. सो फ्रांस के बारे में मैं तो एक्साइटेड था. तो अब मैं बोलता हूँ कि मैं जो इंस्टीट्यूट में हूँ, इट्स कॉल्ड जो भी फ्रेंच नाम है वो जाने दो, उसका शॉर्ट फॉर्म इज ISAE Supero. So then this ISAE Supero Institute is one of the best in Europe. So I decided to go to Europe. And Europe में aerospace industry का जो hub है, you know France, like Germany is for cars, France is for planes. तो फिर ये जो एविएशन हब ऑफ फ्रांस है, इट्स कॉल्ड एज टुलूज. तो वहाँ पे बहुत सारे एरोस्पेस यूनिवर्सिटीज़ है एंड उसमें से बेस्ट इज ISAE Supero. जितना मैंने पढ़ा था, जितना कोरा पे सर्च किया था, सब सर्च किया था. So then I was really not expecting me getting admitted there. So basically मेरा point ये था कि मैंने internship में थोड़ा lacking था because of COVID scenario and all. But then I firmly believe कि because of this IIT tag name मुझे यहाँ पे admission मिला and I can't be grateful. मतलब it's a dream come true. अब कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे बेस्ट एक्टिविटीज है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स. सो एरोस्पेस इज समथिंग आई लव. अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेन उड़ा रहा हूँ. एग्जैक्टली. तो कल आई मीन दिस इज इनसाइड इन्फॉर्मेशन, मैं कल लेसिक करा रहा हूँ ताकि बाद में आगे चल के मैं प्लेन उड़ा सकूँ. ऐसे वहाँ पे फ्लाइंग क्लब है. सो देर इज सर्फिंग क्लब, देर इज स्कीइंग क्लब, there is so much. I'm just so excited for my life ahead and I can't be thankful to whatever life has given me yet and whatever it will still give. I'm just very much looking forward to an adventurous journey ahead. So that's just I suppose. एग्जैक्टली इस वीडियो का यही मोटिव था. क्या मस्त स्ट्रक्चर पे चले हम कि हमने स्टार्ट किया कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. Then we come to this कि हाँ हम आए तो क्या है. Then the exposure we get and the opportunities we are and the opportunities and the respect we get. पहले तो रिस्पेक्ट यार, ऐसे कैसा मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि रिलेटिव्स में रिस्पेक्ट आ गया, अच्छा बेटा IIT निकाल लिया, मौसी जी प्यार से बात करने लगी. योगेश कुछ बता उस पे. कई रिलेटिव्स तो शॉक पे आ जाते, करे हो गया इसका. मेरे साथ ऐसा मैंने नहीं कहा, हाँ था. हो गया. मेरे रिलेटिव्स को पता ही नहीं था IIT के बारे में, तो इट्स फाइन. आई थिंक ये बहुत प्राउड मोमेंट होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में जो अच्छा कॉलेज से क्लियर करता है. IIT हो गया, एम्स हो गया, क्लैट्स जो भी जो निकालते हैं. तो इफ यू आर गेटिंग इनटू वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, इट्स यू नो यू वन ऑफ योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ. और पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा होता है. आगे कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें देने वाला होता है, तुम जैसे बोलते हो आई एम फ्रॉम IIT, तो उस बैक ऑफ माइंड उसे पता चल जाता है, एक इमेज बन जाती है कि दिस गाय इज अ हार्ड वर्किंग गाय. हाँ तो अपॉर्चुनिटीज एकदम फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा हो जाता है. हाँ भाई, इसको लो. ऐसे VIP लाइन होती है ना ब्रो, वो अपनी लाइन है. सिंपल एज दैट. तो या दिस वाज द स्मॉल टॉक एंड as always I have these guys with me क्योंकि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट माइंड्स हैं to share their insight with you guys. So इतना ही रखते हैं, बाकी कभी और कैरी करेंगे, है ना. थैंक यू गाइस. और बाकी ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं इनको, और बस बोलो कि विश्वास रखें, सब चले. तो उसको थैंक यू बोलेगा. अरे
पार्थ मेहनत करो। गुड बाय नोट। हार्ड वर्क करो, अपने आप पे बिलीव रखो। बिलीव हाँ। रखोगे अपने आप, हार्ड वर्क करोगे और हार्ड वर्क और करोगे तो अपने आप सिंपल बिलीव चीज आएगा। है, ट्रूथफुल रहो। मतलब अगर तुमने हाँ। इतना इतना किया है तो तुम एक आइडिया रखो कि मैं इतना कर रहा हूँ। किसी प्रोफेसर या किसी टीचर या पेरेंट्स के लिए मत करो। हार्ड वर्क करो, जो कॉन्फिडेंस हार्ड आएगा। वर्क कर रहे हो या तुम जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसके रिजल्ट सिर्फ तुम्हें मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली यही it's- सुनना था मुझे। बस। तुम्हें मिलेंगे भाई, तुम उस कॉलेज में रह रहे होगे, सिंगल रूम में रह रहे होगे, तुम खेल रहे होगे, तुम डांस कर रहे होगे, तुम मॉडी में परफॉर्म कर रहे होगे, एल्चरिंगा देख रहे होगे, मूड इंडिगो में नाच रहे होगे, तुम्हारी लाइफ होगी क्रेजी। नरेन फर्स्ट ईयर मूड इंडिगो इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप वो करते हैं। सो या दैट्स इट। पार्थ कुछ बोलना है आपको? मैं बस मतलब आई से दिस एवरी वीडियो, हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, लव योरसेल्फ, बी हैप्पी टू योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ एज योर नंबर वन प्रायोरिटी, वर्क हार्ड एंड एब्सोल्युटली किल इट, Do it yourself. create your Do it strength, for kill it. yourself. Do it for yourself. Everything you do should be for you. You should be your number one priority, and that means you must love yourself throughout the process. That's the most important thing for me. Thanks. Stay happy. Love yourself, know yourself, and that's it. Super. चलो, All the best. Bye bye. All the best. Bye. Yogesh. Good luck, and I think हमारे will our Instagrams be in the bio? या डेफिनेटली भाई, वो हर वीडियो के बायो में है। बात तो एक्सेप्ट तो कर लिया कर। बस। मैं करता हूँ, देख when somebody asks me doubts, मैं करता हूँ, मैं doubts answer करता हूँ. So if you have any doubts related to the JEE process, please feel free to reach out to any of us. We'll be happy to help you. सो दैट वाज पार्थ, मिनरल, योगेश एंड बेला। आई होप हम लोग आपको थोड़ा मोटिवेट कर पाए होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हम सबको आते रहते हैं। आपको जेई के मेंटरशिप के लिए चाहिए होता है कुछ टाइम हमारा, या फिर आपको प्रिपरेशन में कुछ हेल्प चाहिए होता है, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड बुक्स क्या चाहिए। ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स में क्वेरीज हैं, तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कि सबको रिप्लाई करो, और हमें बुरा भी लगता है सबको नहीं कर पाते हैं। तो जेई के कुछ अपने दोस्त लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सर्वे का, उसको ज़रूर भरें। आपका ऐसे जो प्रॉब्लम है या इश्यूज़ है या क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, हम जान पाएंगे तो हम आगे बढ़ के इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो जाके डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ वो लिंक देखिएगा और सर्वे भर दीजिएगा, जो भी जेई एस्पिरेंट्स है। हम उसका कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको मोटिवेट किया होगा, और आप लाइफ में जो भी कर रहे हो अच्छा होगा। ट्रस्ट मी, इट विल बी वर्थ इट। सो प्लीज़ कीप द हार्ड वर्क एंड वन डे योर पेरेंट्स आर गोना बी प्राउड ऑफ यू। एंड बस अपना ध्यान रखिए, घर वालों से प्यार कीजिए। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग और हैव ए गुड डे, व्हाटएवर, बाय।